السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آج میں ایسے شخص کی بات کرنے والا ہوں، کہ جس کے بارے میں جب میں نے لکھا تھا، جب میں نے سوچا تھا تو سمجھ لیجیے میں خود رونے لگا تھا۔ میرا دل اتنا رو رہا تھا، یاد کر کے اس پل کو، یاد کر کے وہ پل کو بہت رو رہا تھا۔ سمجھ لیجیے وہ منظر، وہ حقیقت، وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں آج ان کی بات کرنے والا ہوں کہ ان کا انتقال ہوا تو ہوا کہاں، ان کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے بنی ماسٹر نام سے ایک شخص تھے، بزرگ شخص، کیونکہ ہم نے انہیں بزرگی حالات میں ہی دیکھا تھا۔ بنی ماسٹر ان کا نام تھا، اور دیکھیے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا بہت ہی اچھا اخلاق تھا، سمجھ لیجئے۔ اور ان کی بیٹیوں کی بات بتاؤں تو ان کی بیٹیاں 6 تھیں، ان کے بیٹے 3، بہویں 3، اور پوتوں کی بات کرنے لگوں تو پوتے ان کے 7 پوتے، جی ہاں 7 پوتے، اور پوتیوں کی بات کرنے لگوں میں، پوتیوں کی تو 9 پوتیاں۔ یہ ان کا ایک پریوار تھا۔ کتنی؟ 9 پوتیاں، 7 پوتے، 3 بہو، 3 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ ان کا یہ پریوار تھا، بڑا ہنستا کھیلتا، بہت خوش مزاج پریوار۔ اور اس پریوار میں رونا کب آیا، یہ پریوار رویا کب، سارے مل کر کے کب روئے؟ جب ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے آج ان کے انتقال سے تعلق، ان کے انتقال کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ ان کا انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو کیسی حالت میں تھے، ان کی حالت کیا تھی، یہ کہاں پر تھے جب ان کا انتقال ہوا؟ تو دیکھیے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ کہاں پر تھے، ساری بات بتاؤں گا۔ دیکھیے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیا جائے، پہلے ان کی زندگی کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ دیکھیے ان کی ظاہری زندگی کیسی تھی۔ جب کسی سے وہ لے لیا کرتے تھے تو دے دیا بھی کیا کرتے تھے، لیا بھی کیا کرتے تھے اور دیا بھی کیا کرتے تھے، اور کسی کا حرام نہ کھایا اور حلال کھایا۔ اپنی محنت سے کما کر کے ان شخص نے کھایا، ان بزرگوں نے اپنی محنت سے کما کر کے کھایا، کسی کا حرام نہ کھایا اور حلال کھایا۔ دیکھیے اتنی محنت کی انہوں نے اپنی زندگی میں، اتنی محنت کی، بہت زیادہ محنت کی۔ ایک روز وہ آیا کہ ان کی طبیعت علیل ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ان سے کھاٹ پہ سے نہ اٹھا گیا، ان سے چارپائی سے نہ اٹھا گیا۔ تو ایک روز وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے، اے اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے، اتنی طاقت دے دے جو میں تیرے گھر، تیرے مسجد، تیرے گھر جا کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ حالانکہ وہ کھاٹ پر بھی عبادت کیا کرتے تھے، ایسے وہ نیک انسان تھے۔ جب ان کی طبیعت علیل ہوئی تو وہ کھاٹ پر پڑے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک روز زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب رات کی تاریخ تھی، 9 بجے سے سم تھنگ 10 کا ٹائم ہو رہا تھا، اور اتنی طبیعت بگڑ گئی، اتنی طبیعت بگڑ گئی کہ ان کی بہویں رونے لگی، ان کے بیٹے رونے لگے، ان کی پوتی پوتے رونے لگے، سب رونے لگے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا آج کیا ہو گیا، آج دادا کی طبیعت زیادہ ہی علیل ہے، زیادہ ہی دادا کی طبیعت خراب ہو گئی، آج ماجرا کیا پیش آنے والا ہے۔ دیکھیے ایک بیٹا ان کا مراد آباد کی سرزمین پر رہتا تھا۔ اب اس کو کال کی، کال کرنے کے بعد کال کو ریسیو کیا، بات چیت کی، پتا چلا کہ باپ کی طبیعت علیل ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے۔ باپ کی طبیعت خراب سن کر کے وہ بھاگا گھر آیا، وہ شخص بھاگا جب گھر آیا، آنے کے بعد باپ کی حالت کو دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہ بات بتا رہا ہوں ان کی ظاہری زندگی کی، کہ ظاہری زندگی کس طرح سے کٹی۔ اب بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، اللہ اکبر! تینوں بیٹوں کی بیویاں رو رہی ہیں، اور دیکھیے وہ کھاٹ پر پڑے ہیں، طبیعت بہت زیادہ علیل۔ اب کیا ہوتا ہے، رات کی تاریخ ہی بڑھتی ہے۔ اب بڑا بھائی کہہ رہا ہے چلو مراد آباد کی سرزمین پر چلتے ہیں، چلو وہاں پر چلتے ہیں، وہ ہاسپٹل چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں۔ اب کافی جگہ لے کر کے گئے، کافی جگہ دکھایا۔ ایک روز پھر طبیعت علیل ہو گئی، شفا پا گئے تھے، پھر طبیعت علیل ہو گئی۔ دوبارہ جب طبیعت علیل ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ تیری عبادت کرنے کے لیے میں تیرے گھر جا سکوں۔ پھر اللہ نے دیکھیے کتنی اچھی سے دعا کو قبول کیا۔ دعا کو قبول کس طرح سے کیا؟ بہت صحت مند ہو گئے، صحت پالی، صحیح ہو گئے، چلنے پھرنے لگے۔ جب چلنے پھرنے لگے تو ایک روز اپنے پوتے سے
जो उनका बिचला बेटा था अपने बेटे के लड़के से कहने लगे जरा मेरे सर के बाल उतार दे और मेरी जो खत है ये खत यहां से यहां तक इस तरह से बना दे। उनकी पूरी दाढ़ी थी, पूरी दाढ़ी। अपने पोते से कहा मेरी खत को बना दे। अब पोते ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं है। अब उससे कहा बना दे, कल नहीं पता। उसने कहा दादा कल बना दूंगा। दादा ने कहा कल का कुछ नहीं पता, अगले दिन का कुछ नहीं पता, तू आज ही बना करके जा। अब उससे बहस करने लगी, कहने लगे। वो कहने लगा ठीक है चलो आज तुम्हारी खत और तुम्हारे सर के बाल मूंड करके जाता हूं। अब उसने सर के बाल मूंडे, अपने दादा की ये दाढ़ी को कतरा, जितनी कतरने की इजाजत है इतनी दाढ़ी को कतरा, अपने दादा की खत को बनाया। देखिए बनाने के बाद वो स्कूल को तो रवाना हो गया, मगर एक बात और उससे कहा था कि बेटा कुछ उससे बात कहा था, ऐसी बात को कहा था जो वो समझ ना पाया। वो समझ ना पाया और उसने इतना इग्नोर कर दिया कि उसको भी पता ना चल पाया। अब वो स्कूल गया, जाने के बाद क्या होता है कि उसी दिन अब जैसे कि वो स्कूल से आता है, सब पोती पोता अपने कमरे में जमा है, बहुएं अपने अपने कमरे में जमा है, सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं। उससे पहले वो असर की नमाज से पहले दूध लाया करते थे और मंगवाया करते थे कि पोते तू दूध लेकर के आ, कि तू दूध लेकर के आ। अब बच्चों से कहा करते थे, बच्चों से कहा करते थे कि तू दूध लेकर के आ। अब बच्चे ला दिया करते थे, पनवा करके चाय पी लिया करते थे। मगर उस रोज क्या हुआ, जब तबीयत अलीम थी, ठीक हो गए, शिफा पाली, सर के बाल मुड़वा लिए, नहाए धोए, कपड़े भी कौन से पहने, जिन कपड़ों को जिस लिबास को वो पहन करके शादी में जाया करते थे, किसी रिश्ते में जाया करते थे पहन करके, किसी गहीने में पहन करके जाया करते थे, वो कपड़े उन्होंने अपने बदन पर पहने। वो क्यों पहने, ना कोई शादी थी ना कोई फंक्शन था, कुछ नहीं। नहाए धोए, नई तहमत पहनी, नया कुर्ता पहना। वो पहनने के बाद अपना बाहर जाकर के बैठ गए, मकान से बाहर जाकर के बैठ गए। जब वो मकान से बाहर जाकर के बैठे, असर से पहले का टाइम जब आया तो किसी से कुछ ना कहा, किसी से कुछ ना कहा। खुद गए दुकान और दुकान से जाकर के दूध लाए, दूध ला करके खुद चाय बनाई, खुद चाय बना करके पी गए, किसी से कुछ ना कहा, चुप हैं। उस दिन किसी से कोई जिक्र ना खाने का जिक्र, ना पीने का जिक्र, ना रोटी का जिक्र, न किसी चीज का जिक्र। वो सिर्फ अपनी मगन में मगन है, किसी की कुछ नहीं कहा, किसी की कोई बात नहीं सुनी, किसी से कुछ नहीं कहा। उससे पहले तो पोती पोतों को डांट दिया करते थे, कोई दूध नहीं लाया करता था तो, मगर उस दिन किसी को ना डांटा। मगरिब से पहले अपने पोते से, एक पोते से कहा करते थे कि बेटा नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो। एक बात और बताऊं, जब वो नमाज पढ़ा करते थे, नमाज तो बताऊं कैसे पढ़ा करते थे। इमाम साहब के पीछे फर्ज पढ़ के आया करते थे। वो इमाम साहब के पीछे फर्ज पढ़ के दुआ मांग के घर आकर के नफल और सुन्नत पढ़ा करते थे। वो क्यों पढ़ा करते थे पता, उनके छोटे छोटे पोती पोता जो थे ना, देखते देखते जो आया करते थे, वो उनके साथ खड़े होकर के कोई दुपट्टा बिछा करके, कोई मुसल्ला बिछा करके, कोई अपनी अम्मी का दुपट्टा बिछा करके नमाज पढ़ा करते थे। अपने दादा के साथ वो रुकू करा करते थे तो वो भी रुकू करा करते थे। वो इस बिना पर घर आकर के नमाज पढ़ा करते थे क्योंकि घर का माहौल भी सुधरेगा। अब देखिए, एक उस दिन पोते से कुछ ना कहा, कुछ नहीं कहा कि नमाज को चलना या नहीं चलना। खुद क्या करा, खुद वुजू किया। और एक और अच्छाई थी उनके अंदर, जब वो नमाज को जाया करते थे घर वुजू करके जाया करते थे। मेरी बात एक एक गौर से सुनना, जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे तो घर वुजू करके जाया करते थे, क्योंकि जितने कदम नमाज के लिए हम चलेंगे इतना ही सवाब मिलेगा। तो हर एक बात को ऐसे फॉलो किया करते थे, ऐसे फॉलो किया करते थे जो ओलामा कौम को बताया करते, उन बातों को वो फॉलो करा करते थे। अब देखिए, उस दिन किसी से कुछ ना कहा, चुपके चान वुजू करा, वुजू करके मस्जिद गए। अब पहली सफ पर जाकर के बैठ गए। देखिए बात सुनिए, मेरी बहुत पॉइंट की बात है। जब पहली सफ पर जाकर के बैठ गए, अब होता क्या है कि उन्हें खांसी आती है। कितनी तारीख थी बताऊं, उस तारीख का भी नाम बता दो, सुनो मेरी तारीख। 19 तारीख नमा महीना सन 2016 चल रही थी।
अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कबल 10 साल पुरानी बात है, 9 साल पुरानी बात है। 19 तारीख नमा महीना 2016 की ये बात बता रहा हूँ। 6:23 पर मस्जिद की सब पर जाकर के बैठे थे। क्या हुआ, खांसी आती है। खांसी के साथ जब वो वुजू खाने जाते हैं ना, वुजू खाने, तो वुजू खाने जब बलगम थूकने के लिए जाते हैं, जब थूकने के लिए फैली खांसी में जब गए, थूक करके बैठ गए, फिर सब पर नमाजी वुजू कर रहे हैं, कुछ नमाजी वुजू करके सब पर बैठ गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई सी तस्बीह पढ़ रहा है, वो भी अल्लाह की मगन में मगन थे, वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। एक तस्बीह उनकी जेब में रहा करती थी, तस्बीह का बिरद किया करा करते थे, पढ़ा करते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो हमको भी बताया करते थे कि बेटा ये पढ़ा करो, आगे समझ में। तो वो नमाज से पहले तस्बीह पढ़ रहे थे, जब उन्होंने तस्बीह को पढ़ा, बलगम आया, थूकने गए, पहली खांसी, फिर बैठ गए, दूसरी खांसी जब थूकने गए, फिर बलगम आया, तीसरी जब थूकने गए, खून आ गया। देखिए, जब तीसरी खांसी थूकने गए तो बलगम नहीं आया, इस बार बलगम नहीं आया, इस बार आई तो क्या आई, इस बार जो आई, खून आ गया। बलगम के साथ क्या आ गया, खून। खून इतना आया, इतना खून आया कि नाली में बह रहा था, समझ लीजिए। अब वहां पर मौजूद लोग जो वुजू कर रहे थे, कुछ लोग देख करके हैरत हो गए और खड़े हो गए, डर गए कि ये मामला क्या हो गया, क्या बात हो गई, जो मुंह से इतना खून आ रहा है, इनकी तबीयत अलील है, इनकी तबीयत खराब है। अब उसी वक्त एक शख्स उनके मकान पर भागा भागा जाता है, एक शख्स दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर के कहता है तुम्हारे बाप के मुंह से खून बह रहा है, और इतना खून बह रहा है कि वुजू खाना भी तर्क हो गया है, वुजू खाना लहूलुहान हो गया है, खून से लथपथ हो गया है। अब देखिए, जहां पर वुजू कर रहे थे सारा खून उस पर था, और कुछ फर्श पर बिखरा था, कुछ वुजू खाने पर था, देखा तो नाली लाल थी। अब देखिए, जब एक उस शख्स ने कहा तो उनके बेटे किसी की हजामत बना रहे थे, बना भी कौन से वाले रहे थे, बड़े वाले बेटे, उनके किसी की हजामत बना रहे थे। वो काम छोड़ा, एक उनका पोता बाहर खड़ा था, उस पोते को पता चला, जब पोते ने ये सुना दादा के मुंह से खून आ रहा है, वो दौड़ता दौड़ता मस्जिद पहुंचता है, पहली पैरी पर जब कदम रखता है, पहली पैरी पर जब कदम रखा तो समझ लीजिए देख करके उस पोते के होश उड़ गए। अब समझ लीजिए उसको ये पता नहीं चल रहा था कि मेरा जमीन पर कदम है या कहां पर कदम है, वो होश खो बैठा था। जब देखा इतना खून जिंदगी में उसने पहली बार, कि पूरी दाढ़ी तर हो रही है, पूरे नए कपड़े जो पहने थे उन्होंने, जो बिया शादियों में पहन करके जाया करते थे, पूरी दाढ़ी तर हो रही है, पूरा कुर्ता तर हो रहा है, खून में लथपथ हो रहा था। देखिए, जब उसने ये माजरा देखा वो परेशान हो गया, उससे रहा ना गया, उसे चक्कर आ गया। समझ लीजिए उस पोते ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा था तो उसके दिल पर कितनी बुरी चोट पड़ी होगी कि आज दादा के मुंह से इतना खून कैसे आ रहा है, जहां को डॉक्टर ये कहा करते थे कि इनके पेट के अंदर, इनके जिस्म के अंदर, इनकी नसों के अंदर, इनके जिस्म के अंदर खून इतना मौजूद नहीं है, मगर वो खून आया तो आया कहां से। देखिए, वो देख करके हैरत में पड़ गया, और इतने पे उनके बड़े ताऊ, इतने पे बड़े पापा उस लड़के के, उस पोते के बड़े पापा आ पड़े, और आने के बाद देखा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी गोदी में उठाया। जब उस पोते ने सबसे पहले क्या करा, पोते ने जब देखा तो उनके कांधों को पकड़ लिया। हाँ, याद आ गई, जब पोते ने देखा तो उनके कांधों को जाकर के पकड़ा, जब कांधों को पकड़ा, थोड़े उनके हाथ में गिरे, उसे चक्कर आ गए, और देखा इतने पे बड़े पापा आ गए। बड़े पापा ने अपनी गोदी में उठाया, और गोदी में उठाने के बाद देखते पूरा परिवार मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा था, पूरा परिवार मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा था, पूरा परिवार मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा था। समझ लीजिए कि वो मंजर कैसा होगा। पोती मस्जिद की तरफ भाग रही थी, पोता मस्जिद की तरफ भाग रहा था, बड़े बेटे ने अपने बाप को गोद में उठाया, खून से लहूलुहान पूरा शरीर। इस तरह से वो मंजर होगा जब बाप की लाश, जब बाप को अपने हाथ में उठाया होगा, जब बाप को जैसे ही हाथ में उठाया, हाथ में उठाना था, बाप ने अपने हाथों को छोड़ दिया, बाप ने अपनी टांगों को छोड़ दिया, बाप ने पूरे शरीर को छोड़ दिया, बाप की जान निकल गई, बाप रुखसत हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। उस बेटे ने अपने बाप को किस तरह से हाथ में उठाया होगा, तुम सोचिए।
सोचने की बात है कि किस तरह से उसको अपने हाथ में उठाया होगा जब लेकर के जा रहा था। सारी पोतियां, उनकी बहू है, पीछे पीछे भाग रही है कि आज अब्बा को क्या हो गया है, अब्बा उठो तो। अल्लाह अकबर। देखिए जब उस बाप को खाट पर चारपाई पर लिटाया गया, मजमा जमा हो गया। नमाज में कब्ल 3 मिनट थे, 3 मिनट से समथिंग 2 मिनट थे। अब तुम सोचिए जब मजमा हो गया इकट्ठा, नमाजी नमाज पढ़ करके आए, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को फौरन बुलाया गया। डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़ा, नब्ज पकड़ी। हाथ पकड़ने के बाद कहने लगा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तुम सोचिए जब उस शख्स ने, उस डॉक्टर ने यह कहा कि इनके अंदर कुछ नहीं है, तो बड़े बेटे की क्या हालत हो गई होगी जो मौजूद था, मौजूद। सोचिए कैसी हालत हो गई होगी। बड़े बेटे को जब पता चला, ऐसी पीछे को गिर गया, और इतना ऐसा गिरा कि सर पर चोट लग गई। चूल्हे पर वो बड़ा बेटा गिरा, और बड़े बेटे के अंदर जो ताकत थी वो बेताकत हो गया। बाप का जनाजा देख करके, बाप की लाश देख करके। अब देखिए वो बुजुर्ग इंतकाल कहाँ करे, मस्जिद के अंदर इंतकाल करे। सोचिए यार, मस्जिद के अंदर इंतकाल करने वाला कितना खुश नसीब होगा। अब देखिए जब बड़े बेटे को पता चला, उससे छोटे बेटे को जब बताया, उसको तो ये भी नहीं पता था कि बाप का इंतकाल हो गया। उसको तो यही बताया गया था कि बाप की तबीयत ज्यादा खराब है, घर आ जाओ। वो मुरादाबाद की सरजमी पे से चल कर आया था। दूसरे बेटे को कॉल की गई, वो भी जल्दी भागा भागा आया। अल्लाह अकबर। देखिए ये मंजर जब तीनों बेटों के सामने बाप पड़ा था, तीनों बेटों के सामने बाप का जनाजा रखा था, बाप खून में था। तो यार बाप जब खून में था, तो देखिए बेटों की हालत क्या हो रही होगी, बेटों का क्या हालत हो गई होगी। और देखिए उन 6 बेटियों की क्या हालत हुई होगी। अभी तो मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया है, उनके बारे में बताया भी नहीं है। उन 6 बेटियों की हालत किस तरह से बिगड़ी होगी। उनको तो ये भी नहीं बताया उनको भी कि तुम्हारे बाप इंतकाल कर चुका है। देखिए उनकी एक बहन भी थी जो बुजुर्ग टांडे की सरजमी पर रहती हैं, टांडे की सरजमी पर रहती हैं। उनको भी ये नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का, तुम्हारे भैया का इंतकाल हो गया। वो कितनी रो रही होगी जब देखा होगा। जब बड़ी बेटी को पता चला, बड़ी बेटी ने आकर के देखा, तो बड़ी बेटी तो सोच रही है कि बड़ी बाप की तबीयत अली ले देख करके घर आ जाऊंगी। देखिए बहन ने, उस बेटी ने आकर के जब बाहर देखा, घर के बाहर लाल चारपाई, लाल कुर्सियां पड़ी थी, और बाप का जनाजा देख करके, बाप की मैयत देख करके, बाप को इस तरह से देख करके टांगों की ताकत निकल गई। छोटी बेटी, उससे छोटी बेटी, सारी बेटियां घर कह करके आई थी, अपनी बेटियों से कह करके आई थी, अपने बेटों से कि बेटी मैं शाम तक, बेटी मैं सुबह तक घर आ जाऊंगी, सुबह को घर आ जाऊंगी। बाप की तबीयत खराब है, उनको देखाऊं, तुम्हारे नाना की तबीयत खराब है, मैं सुबह तक घर आ जाऊंगी। सब दिलासा दे करके आई थी, बाप को देख करके आ जाऊंगी, सब दिलासा देख करके आई थी। मगर जब देखा, जब उस छोटी बेटी ने आकर के देखा कुर्सियां कैसी पड़ी हैं, सबने टोपियां क्यों लगाई हैं, क्या बात है। बाप का जनाजा देख करके उसकी भी टांगों की ताकत चली गई, उसके हाथ पैरों की ताकत चली गई, बाप की खाट को पकड़ करके रोने लगी। तुम सोचिए कि बाप का जनाजा सामने हो तो किस तरह से क्या होता होगा, क्या मंजर होता होगा। अल्लाह, वो मंजर कैसा होता होगा जब माँ और बाप का जनाजा सामने होता होगा। अब बेटियां रो रही हैं, सबने फोन कर दिया, बेटी तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया, तुम्हारे नाना चले गए, नाना रुखसत हो गए। अब तुम हिसाब लगाइए किस तरह से मंजर होगा वो। बेटियां रो रही है, बेटे रो रहे हैं। अब सोचिए कितना खतरनाक मंजर होगा यार जब नमाज जनाजा की तैयारी की गई। उनके कुछ पोते तो बाहर भी थे, एक पोते को तो सही से होश भी नहीं आया था देखने के बाद, सही से होश भी नहीं आया था उनके बड़े पोते को देख करके। जब वो गिरा था नीचे जमीन पर, सही से देख भी ना पाया कि मेरा बाप है ये, जिसको मैं सही सलामत छोड़ करके गया, आज उसको खाट पे पाया मैंने। देखिए उस पोते की हालत क्या हुई होगी। सोचिए यार, सोचिए क्या हालत हुई होगी उसकी। जब नमाज जनाजा के लिए ले जाया गया, सारी बहुत रो रही है, सारे बेटे रो रही हैं, सारी बेटियां रो रही हैं नमाज जनाजा में। देखिए अल्लाह अकबर। जब नमाज जनाजा में दुआ हुई तो दुआ भी किस लिए हुई, कैसी दुआ हुई। देखिए सब ओलामा, जितने भी ओलामा वहां पर मौजूद थे,
यही दुआ कर रहे थे, मौला हमें भी तू ऐसी मौत देना जो मैं सजदे में हूँ मेरी रूह निकल जाए, कि मैं मस्जिद में हूँ मेरी जान चली जाए, बबुजून की मौत हुई। अब तुम बताओ ऐसे शख्स जन्नती ना होगा तो कौन होगा? इसको जन्नती ना कहें तो क्या कहें? मुझे एक बार तो बताओ, ऐसे शख्स को जन्नती ना कहें तो क्या कहें? कुछ तो बताओ मुझे। जो मस्जिद के अंदर इंतकाल करा हो, जो वुजू से इंतकाल करा हो, जो मगरिब की नमाज से चंद मिनट पहले इंतकाल करा हो, ऐसा शख्स जन्नती नहीं होगा? हाँ, जन्नती होगा। और देखिए ऐसे जन्नती शख्स का तीजा भी बहुत भारी हुआ। दो दो तीन तीन गांव, दो गांवों के अंदर उनका तीजा मनाया गया और उनके लिए सारे सवाब किया गया। और आज तक उनके खानदान वाले, उनके परिवार वाले उनका जिक्र करते हैं, और ये जिक्र उनके पोते खुद बुजुर्ग हो जाएंगे फिर भी उनको ना भूल पाएंगे, क्योंकि काम ही दुनिया के अंदर उन्होंने ऐसा किया है। सबसे मेल मोहब्बत से रहा करते थे, किसी का हक ना मारा, किसी का हक नहीं मारा, किसी को तकलीफ ना पहुंचाई, किसी को बुरा ना कहा, किसी को गाली ना दी, हर किसी से अच्छे से बोले। ऐसा शख्स जन्नती ना होगा तो कौन होगा? इसीलिए मैंने जन्नती बोला है, क्योंकि मस्जिद के अंदर इंतकाल करने वाला यार बड़ा ही खुश नसीब होता है। जब जब दुआ हो रही है मस्जिद के अंदर, उनके इंतकाल के बाद मस्जिद में उलमा भी दुआ कर रहे हैं, हर नमाज फज्र में दुआ कर रहे हैं, मौला जैसे बनने मास्टर को मौत आई, ऐसी मौत तो हमें अता करना, ऐसी मौत तो हमें अता करना, ऐसी मौत तो हमें अता करना। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में हर कोई अल्लाह से दुआ कर रहा है, मौला जैसे उनको मस्जिद के अंदर मौत आई तो हमें भी अता करना। जैसे लोगों को पता चल रहा कि मस्जिद के अंदर कोई शख्स इंतकाल करा है, जैसे नमाज जनाजा से पहले लोगों को मालूम चला कि इस शख्स का मस्जिद के अंदर इंतकाल हुआ, लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे थे, और लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे, कांधा देने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह के ये नेक बंदे हुआ करते हैं जो मस्जिद के अंदर इंतकाल करते हैं, और जो नेक राह पर चलते हैं, जो हर रूल को फॉलो करते हैं, जो अल्लाह की और मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं। क्योंकि यार वो नमाजें पढ़ा करते थे, अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, वो कहा करते थे, मौला मुझे मौत दे तो कम से कम इस हालत में दे मैं सही हूँ। अल्लाह अकबर, उनकी दुआ भी कबूल हुई और उनको मौत भी आई तो कहाँ आई? अल्लाह के घर में। अस्सलाम वालेकुम।